caravan which we are launching today with the joint initiative of the US Consulate, the West Bengal government and BanglaNatok.com, Shakti Vahini and others. And this is an awareness van, as we have been mentioning today. We wish it all success and we wish that this awareness levels escalate day by day, and this after going through the other two states too. And we shall work against trafficking, we shall work to prevent trafficking. Minister, the U.S. Consulate is very happy to be participating in this initiative and very proud that we're launching this tip caravan from West Bengal. And I think there are many good examples from West Bengal of work that's been done to combat trafficking. And so I hope that the participants in the caravan will pick up some of those good examples from West Bengal and take them with them as they travel through Jharkhand and Bihar. So thank you for all of this. The State Plan of Action Against Human Trafficking has recently been rolled out, and prevention is one of the major components of this plan. So this caravan will address that issue, the prevention part at least. It will raise the awareness against trafficking. People will go out and see that what is trafficking, and they'll come to know what is trafficking and what measures are there what the state is taking to address trafficking. I wish all success. মানব পাচারের মতো এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে চুপ না থেকে আসুন আমরা সবাই মানব পাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠাই। সতর্ক হও, আওয়াজ ওঠাও। মানব পাচারের বিরুদ্ধে সতর্ক হন, আওয়াজ ওঠান। Be alert, raise alarm. Be alert, raise alarm. এই ক্যারাভ্যানটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে যাবে এবং নারী শিশু পাচার ও আইনের বিরুদ্ধে জনমানুষে সচেতনতা গড়ে তুলবে। শোনো শোনো বন্ধুগণ, মামুনিরা আছো যত শুনো দিয়া, আহা শুনো দিয়া, আহা শুনো দিয়া। আমি এলাম এই ধারায়, যার দয়ায় করিলে দাসে ছালনে তেজিবে দাও দর্শন। তুই মামা বলিস না রে, বরং বলতে পারিস বাবা। পাচারকারী চক্র হইতে হইবে সাবধান, পাচারকারী চক্র হইতে হইবে সাবধান। চারিদিকে উঠে শুধু একটাই রব, সাবধান সাবধান সাবধান। আসছে আকাশে কিংবা পাতালে ফেলে ঝড়ে ঝড় তোমার নগরপুরে। কাজ করতে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যদি কোনো লোক বলেন আমাদের, তাহলে শিশু যে নাম্বারটা রয়েছে 10-9-8 ফোন করা উচিত, কিংবা মহিলাদের যে নাম্বারটা রয়েছে 10-9-1 ফোন করা উচিত। প্রত্যেকটা মানুষই পাচার হতে পারি, কিন্তু আমরা যদি নিজেরা অনেক সংযত থাকি, নিজেরা যদি নিজেদেরকে গুছিয়ে রাখতে পারি, তাহলে আমরা সুরক্ষিত হতেই পারি। 10-9-8 আর 10-9-1 পুলিশের নাম্বার 100। শাহরিনা আক্তার বানুর জন্য জোরে হাততালি আর একটা পুরস্কার। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, কি করতে হবে কি করতে হবে না, কিভাবে তোমরা পাচার নামক এই একটা ভয়ঙ্কর ফাঁদ থেকে বা সংগঠিত অপরাধ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে, তার একটা অভিযান। এবং সেই বিষয়ে তোমাদেরকে জানানোই আমাদের হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এরকম আরো বেশ কিছু মেয়ে যারা ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে, আমরা তাদের জন্য চেষ্টা করি যে তারা যাতে সমাজে ফিরে দাঁড়াক, নিজের পায়ে আবার দাঁড়াক।
কিন্তু বাধা কোথায় জানো? বাধা হয় আমাদের সমাজেরই যে মানসিকতা আছে সেখানে বাধা। आवाज उठाए, सतर्क रहे, आवाज उठाए। मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हम लोग रीच आउट करेंगे स्पीकर साहब, और हर वो जगह में जाएंगे जहां पर ये वनरेबल हैं, जहां से लड़कियां को ये दलाल ले जा रहे हैं। ये आज ये शुरू हो रहा है, यहाँ से लोहरदगा, सिमडेगा, खुटी, गुमला, चाईबासा, रांची होते हुए ये पूरा पटना की ओर निकलेगा। हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों ने देश ही नहीं अपने झारखंड के लिए तो एक बहुत बड़ा इशू जो बनकर सामने आया है, उस इशू को आप लोगों ने उठाया और इसी विषय को आप ले जा रहे हैं देहात क्षेत्र में। और आज हम देख रहे हैं कि जो वाहन जो चलेगी, जो जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है, इस वाहन में हम बहुत सारे स्लोगन देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे नारा लिखे हुए हैं और नारा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, सचमुच हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। और सचमुच बहुत सारी आपके जो कैंपेन की जो गाड़ी है, बहुत सारे अखबार के कतरने हैं या जो बर्निंग इश्यूज हैं, वो बर्निंग इश्यूज को आपने रखा है कि कहाँ गायब हो रहे हैं हमारे बच्चे। मैं नेशनल डोमेस्टिक वर्कर मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। हमारा 85 ग्रुप्स हैं। हम लोग घूम घूम के काम करते हैं। जब घूम घूम के काम करते हैं ना, उसी दौरान महिलाओं का, बच्चों मिसिंग, ये सब आता है। इसी प्रकार मानव तस्करी एक विश्वव्यापी समस्या है। 2012 से 2014 के बीच विश्व में 500 से भी अधिक तरीकों से की गई मानव तस्करी की घटनाएं दर्ज हैं। इनमें से 71% शिकार महिलाएं और बच्चे हैं। जबरन घर का काम या शादी, यौन शोषण, देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी, भीख मंगवाना, बच्चों का व्यापार, अंगों का व्यापार जैसे कारणों की वजह से लोग मानव तस्करों का शिकार बन रहे हैं। अच्छी नौकरी का लालच देकर विदेश में उच्च शिक्षा या तीर्थ यात्रा पर ले जाने के नाम पर, प्यार या शादी का झांसा देकर, अपहरण कर या गोद लेने के नाम पर मानव तस्करों का चक्र महिलाओं, पुरुषों, युवक युवतियों और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। अरे छोटे लाल चाचा आए गेले, तब चांदनी का फैसला कर ले तो। अरे दादा मोह तो जाग चाहो ना, पर जे कुपनी है नी कहेला कि संजाग से आदमी मन भुलाए जाए ना, वो वापस नहीं आवे ना, वो कोनो हालत में मोके नहीं जाए देवी। अरे भला ऐसन कैसे हो सकेला? और शहर जाए के आदमी का लिखे बुलावे? स्टेप्स हैं जिसमें ग्राम सभा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई लड़की ट्रैफिक की जा रही है या ट्रैफिक की जाए तो ग्राम सभा को इसकी सूचना दी जाए, प्रशासन, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे दी जाए। नाटक हमको बहुत अच्छा लगा। हम अपने गांव में जा कर के भी इसकी चर्चा करेंगे कि जो होशियारी नाटक हमने देखा है उसको हम अपने आसपास के बच्चों को भी होशियार बनने के लिए सबक बताएंगे। जो इस नाटक ये जो प्रभावित होती हैं या जो बाहर जाती हैं, ये कहीं बाहर के आदमी नहीं आते, वो हमारे बीच, हमारे समाज से होते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा जो है शोषण या तस्करी किया जाता है। तो इससे हमें सावधान रहना है। जैसे कोई शहर के बारे में बताता है, ले जाने के उसका बात में भरोसा नहीं करना।
पहले कहीं जा रहे तो पंचायत को बताना है, उसका फ़ोन नंबर, टेलीफोन सबका जानकारी देना है। कहीं नहीं जाऊंगी कहने से नहीं होगा, तुम लोगों को जाना होगा स्कूल। मैंने मुझसे वादा किया था तुम्हारे वापस आने पर तुम दोनों फिर से स्कूल जाओगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का सही जगह है स्कूल। सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाकर निःशुल्क शिक्षा शुरू कर दी है। अरे लक्ष्मी लाडली योजना, इन सब पर भी तो तुम्ही लोगों का अधिकार है। हमें लोगों को ये जागरूक करना होगा कि घर घर जाके कि हमें किसी के बहकावे में नहीं चलना है। अगर कोई हमें लालच देता है तो उसमें वो लालच बुरी वाला है, उसमें नहीं फंसना चाहिए हम लोग को। और सबसे पहले तो हम लोग को अपने आप में जागरूक होना होगा। तस्करी के शिकार लोगों का तरह तरह का शोषण होता है, उन पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, उनसे उनके मौलिक मानवाधिकार छीन जाते हैं। हर दिन कितने ही लोग इस तरह गुमनामी के अंधेरे में खो जा रहे हैं। बस अब और नहीं, अब समय आ गया है हमारी चुप्पी तोड़ने का। आइए हम सब मिलकर मानव तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। प्रारंभ किया है जो बिहार के विभिन्न जिलों से होकर ये गुजरेगी। मानव तस्करी आज के डेट में एक बहुत ही भयावह रूप ले चुका है समाज में, और इस चीज़ को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून भी बनाया गया है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि लोगों के बीच में इसका एक अवेयरनेस होना चाहिए। जो भी लोग इसमें ट्रैप होते हैं उन लोगों को बचाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि आज इस NGO के द्वारा किया जा रहा है। और अनिल ने सुनीता को कैसे दलदल में धकेल दिया जहां से निकल पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तुझे यहाँ पर मैंने थोड़ी ही रखा है, तेरा बाप छोड़ गया है तुझे यहाँ पर। ऐसा ठिकाना लगाऊंगा कि ढूंढे से भी ना मिलेगा। खाना दे, खाना दे। रोज रोज तारीफ ही कराना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? तेरे बाप का पीता हूँ, तेरे बाप का पीता हूँ। ऐसे हमसे घर चलाया नहीं जाएगा। क्या हुआ कि बहुत सा हम लोग जो हैं बहुत कुछ नहीं जानते थे। आपका वीडियो, आपका नाटक देखकर वो हमको सीख मिला है, और हम प्रयास करेंगे कि इस सीख को और आगे बढ़ाएं। मैंने आज यहाँ पे जो देखा, जो मानव तस्करी के लिए जो इन्होंने नाटक किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितनी सारी बातें जानी हमने, और जो भी आजकल न्यूज़ में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, हमेशा लगते रहता है कि ये हम इंसानियत के नाम पे कर क्या रहे हैं। कोई अपनी औरत को मार देता है, तो कोई बेच देता है, कोई बच्चों के साथ ऐसे काम करता है। ये सही नहीं है, और इन लोगों ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, और हमें भी इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि एकता में बल होती है। वर्ष 2009 और आज हम वर्ष 2017 में बात कर रहे हैं, तो प्राय सभी जिलों में मानव व्यापार निरोधी इकाई और SJPU, साथ ही साथ महिला थाने और हरिजन आदिवासी थाने भी घोषित हो चुके हैं। पिछले साल बिहार के इतिहास में पिछले साल 100 बच्चों को गोद दिया गया। यदि ये दत्तक ग्रहण संस्थान और या दत्तक ग्रहण कार्यक्रम नहीं चलते, वो 100 बच्चे कहाँ रहते? किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते। हो सकता है कि उनमें से कई बच्चे गोद लेने के नाम पे बेच दिए गए होते। और इन लोगों को बाहर निकालना, उस दलदल से बाहर निकालना, और इनको कुछ रोजी रोटी से जोड़ना ही मेरा मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे। तो कुछ महिलाएं या कुछ बच्चियाँ जो रेड लाइट एरिया से है,
हमारे लालबत्ती इलाका से है, वो बाहर निकल के आई भी हैं और हमारे पास में यहाँ सिलाई सीखती है और कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पेंटिंग और क्राफ्ट का काम भी सीखी। आइए मानव व्यापार को रोकने के लिए हम सब एकजुट हों।